Hello students, the next teaching method is clinical teaching method. So first introduction, nursing is a practice discipline and a skill oriented profession. The learning process in nursing is very unique because nursing students should be able to perform the activities of the profession in life situation unlike other courses. Nurse educators have the responsibility to provide most effective clinical instruction to facilitate best learning. Means nursing एक प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशन है। नर्सिंग में लर्निंग प्रोसेस यूनिक है बिकॉज नर्सिंग स्टूडेंट्स लाइफ सिचुएशन में प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में एबल होते हैं। नर्स एजुकेटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ़ेक्टिव क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना एंड बेस्ट लर्निंग फैसिलिटेट करना। सो देयर इज़ अ डीप गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस and clinical teaching is an individualized or group teaching to the nursing student in clinical area by the nurse educators, staff and clinical nurses manager. So in clinical teaching method, first method is case study method. In that, nursing case study is the blueprint of nursing care rendered by a nursing student to a selected patient for a particular period. It assists nurse educators in promoting active learning and develops critical thinking skill which are extremely important for nurses and other healthcare professional. Means नर्सिंग केस स्टडी ब्लूप्रिंट है नर्सिंग केयर का जिसमें बाय नर्सिंग स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पीरियड के लिए पेशेंट सेलेक्ट किए जाते हैं एंड केस स्टडी मेथड एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने में और नर्सेज स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं एंड केस स्टडी मेथड इम्पॉर्टेंट थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं जो नर्सेस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी मेथड। इन दैट फर्स्ट, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Scientific method means systematically observation, measurement and experiment, formulation and testing. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। सो इट इज़ ए साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सेकेंड, इट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस ब्रांचेस। मीन्स वेरियस ब्रांचेस के नॉलेज के इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज मीन्स बाय एक्सप्लोरिंग, आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइजिंग ideas and information to assess, experience and solve problem. The next, it provides sources of material for future reference. Future reference means already know but with future details. फ्यूचर के रेफरेंस के लिए मटेरियल्स की सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स यू शुड कीप देयर इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस बाय द केस स्टडी मेथड। Next is purpose. First, students learn to identify and define patient problems. Means students learn करते हैं patient की problem को define and identify करने के लिए. Then second, nurses use problem solving skill and hence it provides opportunity to develop higher order skill. Means nurses problem solving skill use करते हैं means the ability to handle difficulties or unexpected situation in the work. इसलिए हायर ऑर्डर स्किल डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। देन थर्ड, स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर प्रोसेस एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीन्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना होता है जिसमें स्टूडेंट्स एक साथ प्रोसेस सीखते हैं। देन फोर्थ, इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स कॉम्प्रहेंसिव केयर। मीन्स इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड किया जाता है in a systematic, holistic approach and using the service of many professional workers together in the standard approach at all major medical center. The next, it develops the spirit of cooperation and coordination as various agencies are involved in finding solution of the patient problem. Means case study method में कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन के स्पिरिट को डेवलप करते हैं क्योंकि वेरियस एजेंसीज पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने में
इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स इन केस स्टडी कैन प्रोड्यूस more details by data. So here first is the case study should includes A. Information about patient, B. Facts about patient, C. Patient condition, D. Information about disease, E. Personal history of patient, F. Social history of patient, G. Use of this information in nursing care. Then after H. Hobbies and interest, I. Economical level, J. Cultural background, K. Background of patient, I. Personal history, M. Social history and use of this information in nursing care. So this is first. Then second, based on this information, various activities should be decided to give complete comprehensive nursing care to the patient. Means इस information के बेस्ड पर पेशेंट को कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर देने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ का डिसाइड किया जाना चाहिए. थर्ड, selection of patient for case study should be done by the student after discussion with the coordinator और सुपरवाइज़र. मीन्स केस स्टडी के लिए पेशेंट का सिलेक्शन कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन के बाद बाय स्टूडेंट किया जाना चाहिए. देन फोर्थ, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी डन सो दैट इट कैन बी सर्व्ड एज एन एक्सेलेंट टूल फॉर डेवलपिंग नर्सिंग स्किल. मीन्स सॉल्यूशन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए जिससे नर्सिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक एक्सेलेंट टूल के रूप में सर्व किया जा सके. द नेक्स्ट इज फॉर्म्स. केस स्टडी मेथड को डिवाइडेड किया गया है टू टाइप्स में. फर्स्ट ओरल एंड सेकंड इज रिटन. सो फर्स्ट इज ओरल केस स्टडी. मेनली oral case study does not offer or opportunity for writing or other creative experience. Only notes are used for presentation. Then next, written case study. In written case study को एक्सेप्टेबल फॉर्म में रीराइट के लिए बहुत टाइम की रिक्वायर होती है. The next is disadvantages of case study method. First, it is a time consuming process. Means case study method taking lot of time. Second, sometimes the patient to be studied are not willing to share their information. Then third, since it required time, sometimes the solution suggested does not work as it differ with respect to time where problem are studied. Means sometimes सजेशन किए गए सोल्यूशन वर्क नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं जहाँ प्रॉब्लम की स्टडीज़ की जाती है. द नेक्स्ट इज नर्सिंग राउंड. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. ए प्रोसीजर इन नर्सिंग एजुकेशन एंड इन लेटर प्रैक्टिस इन विच वन और मोर विजिट टू ए हॉस्पिटल पेशेंट आर शेड्यूल्ड by two or more nurses to coordinate care, troubleshoot, respond to patient needs and share insight. Means नर्सिंग एजुकेशन में एक प्रोसीजर है एंड इन लेटर प्रैक्टिस और आफ्टर प्रैक्टिस हॉस्पिटल के वन और मोर पेशेंट का विजिट टू और मोर नर्सेस के थ्रू किया जाता है जिसमें नर्सेस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है केयर, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है एंड पेशेंट की नीड्स पर रिस्पॉन्ड की जाती है. सो दे कैन बी इंफॉर्मेशन गिविंग राउंड एंड इंस्ट्रक्शनल राउंड. सो फर्स्ट, इंफॉर्मेशन गिविंग राउंड मीन्स एक पर्टिकुलर वार्ड में ऑल पेशेंट के साथ स्टाफ्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड सेकेंड, इंस्ट्रक्शनल राउंड मीन्स नर्सेस चार्ट को रीड करते हैं एंड बेसिक इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए राउंड लेते हैं. द नेक्स्ट इज पर्पस. फर्स्ट, टू एक्वेंट द स्टाफ एंड स्टूडेंट विथ डिटेल ऑफ द पेशेंट. मीन्स पेशेंट की डिटेल्स के साथ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. देन सेकेंड, टू एक्सप्लेन नर्सिंग केयर इंटरवेंशन. मीन्स नर्सिंग केयर इंटरवेंशन एक्सप्लेन करने के लिए. द नेक्स्ट, टू स्टडी द डिजीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द पेशेंट. मीन्स पेशेंट के रिएक्शन एंड डिजीज़ के स्टडी के लिए. द नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द पेशेंट हु नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प. मीन्स पेशेंट को किसी भी टाइप की नीड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. The next, it boosts the morale of the patient and their family member. Means
पेशेंट एंड पेशेंट के फैमिली मेम्बर के मोरल मीन्स मनोबल को एनकरेज करने के लिए। द नेक्स्ट टू डेवलप स्किलफुल नर्सिंग केयर मीन्स स्किलफुल नर्सिंग केयर डेवलप करने के लिए। द नेक्स्ट टू इनेबल द नर्स टू डेवलप स्किल ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ पेशेंट इनटू हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क पेशेंट। नर्सिंग राउंड नर्सेस को इनेबल बनाता है मीन्स हाई, लो एंड मॉडरेट रिस्क वाले पेशेंट में क्लासिफिकेशन की स्किल्स को डेवलप करने के लिए। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग राउंड। फर्स्ट, इट मेक्स क्लासरूम डिस्कशन मोर विविड मीन्स ये क्लासरूम डिस्कशन को मोर ब्राइट बनाते हैं। सेकेंड, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हेल्प होते हैं। थर्ड, इट हेल्प्स इन प्रॉपर लर्निंग ऑफ नर्सिंग केयर मीन्स नर्सिंग केयर के प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प होते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग राउंड। फर्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टीचिंग के लिए नर्सिंग राउंड सुटेबल नहीं है। सेकेंड, समटाइम्स नर्सिंग राउंड मेक्स द पेशेंट अनकम्फर्टेबल मीन्स समटाइम्स क्या होता है नर्सिंग राउंड पेशेंट को अनकम्फर्टेबल फील होता है। द नेक्स्ट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मीन्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। The next is process recording. Process recording is a systematic written formal report of a therapeutic conversation between patient and healthcare personnel. It may be defined as a written account of a conversation during the time they were together for a therapeutic objective. It is recorded during and immediate following nurses patient interaction. Means प्रोसेस रिकॉर्डिंग पेशेंट की हेल्थ केयर पर्सनल्स के बीच की एक थेरेपेटिक कन्वर्सेशन है जिसके बीच एक सिस्टमेटिक रिटन फॉर्मल रिपोर्ट होती है एंड इस थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक साथ एक कन्वर्सेशन को रिटन अकाउंट में डिफाइन किया गया है एंड पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट इंटरेक्शन एंड आफ्टर कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो एज इंटरपर्सनल रिलेशन रिकॉर्डिंग पेशेंट नर्स इंटरेक्शन इंटरव्यू and it is being utilized as a tool to help them in assisting nursing student to introduce understanding about the patient. And process recording in nursing, mainly process recording is the technique by which we record the verbal interaction between the nurse and the client. The next is definition of process recording. A process recording is a method in which student record all the communication, both verbal and non-verbal, spoken and observed through an interview. Means process recording एक मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते हैं बोथ वर्बली, नॉन वर्बली, स्पोकन, ऑब्जर्व थ्रू इंटरव्यू. द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ process recording. It is more time consuming means as the clinical instructor may take more time to make an evaluation about an individual students. The next is purpose of process recording. First, as a teaching tool. Process recording को as a teaching tool में यूज़ किया जाता है. Second, as a self evaluation tool. Self evaluation tool or test is a very important for a analysis and evaluation of oneself. Third, as a therapeutic tool, for example therapeutic tool or test for diagnose the disease. The next is techniques. First, preparing the students for process recording means process recording के लिए students को prepare करनी है. So टीचर्स को स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, उनको बतानी है एंड उनको क्लैरिफाई करनी है कि नर्सेस और पेशेंट की कन्वर्सेशन के बारे में और प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स हाई ट्रेंड होनी चाहिए और प्रोसेस रिकॉर्ड कैसी लिखनी चाहिए. देन सेकंड, रिकॉर्डिंग नर्स पेशेंट इंटरेक्शन मीन्स द स्टूडेंट कॉन्शियस फीलिंग एंड हर इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेशेंट फीलिंग शुड बी रिकॉर्डेड. द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट इवैल्यूएट of the total process record experience should be maintained. Then third, evaluating the nurse patient interaction means students and teacher के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाने के बाद स्टूडेंट्स के पास सीखने
कि एक्सपीरियंस के लिए सब्जेक्ट हैं, लेकिन डेटा टाइम कंज्यूमिंग है एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स को एक साथ प्रोसेस रिकॉर्डिंग की डिस्कशन करनी चाहिए। बाय टीचर बिफोर सेलेक्ट द प्रोसेस, एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करना चाहिए। द नेक्स्ट इज बेड साइड क्लिनिक। बेड साइड टीचिंग एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है क्लिनिक टीचिंग स्किल्स के लिए, जिसमें न्यूमरस अदर बेनिफिट्स होते हैं लाइक एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल, ह्यूमनिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन स्किल एंड रोल मॉडल। बेड साइड क्लिनिक एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है बिटवीन टीचर एंड लर्नर में, जो कि बोथ इन्वॉल्व होते हैं डायनेमिक रिलेशनशिप में। बेड साइड क्लिनिक एक टीचर सेंटर्ड मेथड है जहाँ स्मॉल ग्रुप में स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट एंड ऑल्सो स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड करते हैं पेशेंट के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को, and the teacher directly observe the students' clinical skills. The next is purpose. First, all teaching on data generated by or about the patient. Second, conduct bedside round with respect for the patient comfort and dignity. Third, use bedside teaching particularly for the learning or psychomotor skill. Fourth, provision of feedback to learn during bedside teaching. Fifth, transmit values of the profession and enthusiasm for patient care. The next is common problem with teaching session. First, lack of clear objectives and lack of clear aims and expectation. Second, focus on factual recall rather than on problem solving skill. Third, passive observation rather than active participation of learner. Fourth, inadequate supervision and provision of feedback. Fifth, little opportunity for reflection and discussion.